الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرتی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ یوسف کی دو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں. ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے. یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ مصر میں اپنے آپ کو غلط ماحول میں اور چند بے حیا بے شرم عورتیں ان کو اپنے دامے فریب میں پھنسانے کی کوششیں کر رہی تھی. جب اپنے آپ کو اس غلط ماحول میں گرا ہوا پایا، اس وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، یہ مکار عورتیں، یہ بے حیا عورتیں جس بدکاری کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، اس سے تو مجھے جیل بہتر ہے. اس سے تو پھر میرے لیے قید خانے کی زندگی بہتر ہے، جیل مجھے منظور ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ. اے اللہ، ان عورتوں کے مکر و فریب کو اگر مجھ سے نہ پھیرا تو میں بھی ایک انسان ہوں، میرے بھی بشری تقاضے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف مائل ہو جاؤں. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں میں سے ہو جاؤں. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دعا یوسف علیہ السلام نے اتنی تڑپ اور اخلاص کے ساتھ کی تھی کہ میں نے ان عورتوں کے مکر و فریب سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. انہ هو السمیع العلیم. اللہ بہت دعاؤں کا سننے والا، دلوں کی ارادوں اور بھیدوں کو جاننے والا ہے. حضرات، موجودہ دور میں جو بڑے بڑے فتنے ہیں نا، ان میں ایک بہت بڑا فتنہ عشق و محبت کا فتنہ ہے، زنا خوری کا فتنہ ہے. اور یہ فتنہ اس دور میں اس قدر سر چڑھ کر بول رہا ہے. میں اس مسجد کے منبر پہ کھڑا ہو کے بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے جو اسکول اور کالجوں کی جو نوجوانوں کی میجورٹی ایسی ہے، آج ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی یہ جو بغیر شادی شدہ جو حضرات ہیں نا، نوجوان، میجورٹی ایسی ہے، اکثریت نوجوانوں کی ایسی ہے جو شادی سے پہلے کسی نہ کسی کے معاشرے میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی کے ظلم کے اسیر ہے. اور ویسے بھی انسان خواہشات کے معاملے میں، جنسی معاملات میں، شہوت کے معاملے میں انسان فی نفسی کمزور ہے. اللہ نے کیا فرمایا سورہ نساء سے؟ کیے اللہ نے عورتوں کے نام سے ایک سورہ اتاری ہے، اور اس عورتوں کی جو نام سے سورہ اتاری اس میں مرد عورتوں کی کمزوری کا ذکر کیا. فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ نے فرمایا یہ انسان کمزور ہے. کس اعتبار سے کمزور ہے؟ جسمانی اعتبار سے نہیں، تدبیر کے اعتبار سے نہیں، عقلی اعتبار سے نہیں، بلکہ یہاں پر جس کمزوری کا ذکر ہے اللہ نے فرمایا شہوت کے اعتبار سے یہ انسان کمزور ہے، جنسی معاملات کے اعتبار سے یہ انسان کمزور ہے، خواہشات کے معاملے میں یہ انسان اس سے پہلے والی آیت آپ پڑھیے. فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا.
अल्लाह ने फरमाया मर्द के मामले में औरत कमजोर है, औरत के मामले में मर्द कमजोर है। और यही वो कमजोरी है जिसको मद्देनजर रखते हुए इमाम कायनात ने कभी कहा था कि मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्र अला रिजाली मिनन निसा। आपने फरमाया इस जमीन पर मैंने मर्दों के लिए अपने बाद औरतों से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा। ये मर्द औरत इन दोनों को एक दूसरे से होशियार रहने की जरूरत है। ये मर्द औरत जहां भी मिले, ये कितने ही नेक और अच्छे इरादे और नीयत के साथ क्यों न मिले, ये इनका मिलना कब फितना बन जाए, कैसे फितना बन जाए, कहा नहीं जा सकता। मां तरफ तो बाती फितनतन अज़र्र अला रिजाली मिनन निसा, मैंने जमीन पर मर्दों के लिए औरत से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा। अब देखिए ना, शरीयत की तालीमात को देखिए। शरीयत ने कदम कदम पर मर्दों और औरतों के दरमियान फासले रखे, बड़े फासले रखे। और आज हम क्या कर रहे हैं मालूम है? शरीयत ने अजनबी मर्दों औरतों के दरमियान जो फासले रखे थे, आज हम उन फासलों को खत्म कर रहे हैं। कैसे? कभी तालीम के नाम पर, कभी तिजारत के नाम पर, कभी दोस्तों तहजीब के नाम पर, कभी कल्चर के नाम पर, कभी सकाफत के नाम पर, और कभी मसावत और बराबरी के नाम पर, और कभी रिश्तेदारी के नाम पर। आज देखिए हमारे घरों में कौन है? हमारे घरों में हमारी औरतों के बीच में देख कर हंसी मजाक करने वाला कौन है? कोई अजनबी नहीं है, कोई गैर मर्द नहीं है। कौन है? कोई हमारा चचा का लड़का है, कोई हमारी खाला का लड़का है, कोई फूफी का लड़का है। और हम क्या कहते हैं? अरे ये तो रिश्तेदार है, इनसे क्या खतरा। क्या कहते हैं? गांव खेड़ों में आप देखिए, वरना कहता हूं आज सबसे ज्यादा इज्जत और आबरू को जो नोचने वाले हैं ना, सबसे ज्यादा ये जो हादसे होते हैं ना इज्जत और आबरू के ऊपर, ये अपने रिश्तेदार होते हैं। सबसे ज्यादा धोखा देने वाले हमारे घरों में जो हमारी इज्जतों को नोच रहे हमारे अपने रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदारों का आना बंद करो, इंशाल्लाह ये हादसे खत्म हो जाएंगे। सबसे ज्यादा हमारे रिश्तेदार होते हैं। और लोग क्या कहते हैं? अरे ये फूफी का लड़का, ये चचा का लड़का है, अगर इनको मना करेंगे तो खानदान नाराज हो जाएगा, मेरा भाई नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाने दो। अरे वो आपकी इज्जतों को नोचने के लिए आपकी औरतों के बीच में दयूस है, अगर आप उनको मना नहीं करते। और घर की औरतों से कहो कि पर्दा करो, चाहे वो तुम्हारे चचा का लड़का हो, मामू का लड़का हो, मना करो इन लोगों को। और कभी कभार हमारे घरों में आने वाले कुछ नौजवान होते हैं, हम क्या कहते हैं? अरे ये तो बड़ा नेक है, इन पे तो मुझे एतमाद और भरोसा है, ये तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार और खुदा तरस है। कितना मुत्तकी होगा वो? सईद बिन मुसय्यब से ज्यादा तो मुत्तकी नहीं होगा ना। हाँ, हमारे घरों में जो हमारी औरतें जिनसे पर्दा नहीं करती, हमारी औरतों के बीच में कितना वो परहेजगार होगा, कितना इबादत गुजार होगा। सईद बिन मुसय्यब से ज्यादा मुत्तकी नहीं हो सकता। वो सईद बिन मुसय्यब जिनके बारे में साहब रसूल अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा था, ओ सईद अगर तुम्हारे तकवे, तुम्हारी खुदा तरसी और तुम्हारी इबादतों को मोहम्मद रसूलुल्लाह देख लेते तो खुश हो जाते। इतने मुत्तकी सईद बिन मुसय्यब। सईद बिन मुसय्यब की दोस्तों इबादत और नमाजों की पाबंदी के बारे में बताऊं, जिंदगी के आखिरी अय्याम में कहते थे, लोगों मुझे 50 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए। कितने? 50 साल। 50 सालों में कभी मेरी तकबीर तहरीमा नहीं छूटी। 50 सालों में मेरी कभी तकबीर तहरीमा नहीं छूटी। इतने नेक सईद बिन मुसय्यब। और बाद रिवायात में यहां तक आता है सईद बिन मुसय्यब ने जिंदगी के आखिरी लम्हों में कहा था, लोगों 40 साल तक तो मैंने लोगों की गुद्दी नहीं देखी। ये गर्दन के पिछले हिस्से को गुद्दी कहते हैं। 40 सालों में मैंने लोगों की गुद्दी नहीं देखी। क्या मतलब? मतलब कभी दूसरी सफ में नहीं रहा, दूसरी सफ में खड़ा होता तब ना लोगों की, हमेशा पहली सफ में रहा 40 साल तक। इतने नेक, इतने मुत्तकी, इतने नेक और मुत्तकी इंसान क्या कहते हैं मालूम है? 80 साल की उम्र में कहते हैं सईद बिन मुसय्यब, 80 साल की उम्र में, कि लोगों औरत इतना बड़ा फितना है। ये औरत अगर अपने चेहरे से पर्दा हटा देना तो इतना बड़ा फितना बन जाती है मर्द के लिए। अगर औरत की बात आ जाए तो मुझ बूढ़े 80 साल के सईद बिन मुसय्यब पे भी भरोसा मत करना। और हम क्या कहते हैं? हमारी औरतों के बीच में देखा है बड़ा मुत्तकी है, बड़ा नेक है, इस पे मुझे भरोसा है। और सईद बिन मुसय्यब के बारे में से ज्यादा नेक नहीं हो सकता। वो आदमी उधेड़ उम्र में कह रहा है, 80 साल की उम्र में, औरत इतना बड़ा फितना है कि मुझ पे भी भरोसा मत करना। और कहते हमारे रिश्तेदार, बंद करो इन लोगों का,
ہاتھ سے ختم ہو جائیں گے۔ آج شریعت نے مرد اور عورتوں کے درمیان جو دوستوں دوریاں رکھی تھی نا، ہم نے رشتے داروں کے نام پر دوستوں دوریوں کو ختم کیا ہے، اور نتیجے میں دنیا شہوتوں کا بازار بنی ہوئی ہے۔ جدھر نظر اٹھاؤ شہوتیں ہی شہوتیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ دنیا نہ ہو بلکہ شہوتوں کا بازار ہو، شہوتوں کا۔ اور تھوڑی بہت جو کمی آئی تھی نا، تھوڑی بہت جو کمی بچی تھی نا، سوشل میڈیا نے آ کر اس کمی کو پورا کر ڈالا، اس موبائل نے اس کمی کو پورا کر ڈالا۔ آج لڑکے اور لڑکیوں کا ملنا جو آسان ہوا ہے اس موبائل نے آسان کیا ہے۔ اللہ کی قسم سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ماں باپ کے بھی بس کی بات نہیں کہ ہم لاکھ نگرانی کے باوجود میں جان سکے کہ ہمارا لڑکا کس سے بات کر رہا ہے، ہماری لڑکی کس سے بات کر رہی ہے۔ ہاں، اس موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی کا سیلاب آ چکا ہے، اور یہ نوجوان نسلیں کالجوں میں پڑھنے والے، اسکولوں میں پڑھنے والے اپنے ماں باپ کی احتسابی نظروں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہے۔ فیس بک پہ دوست بنانا، واٹس ایپ پہ لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا، اور معاف کیجئے رات میں گھنٹوں گھنٹوں لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ بات کرنا، معاف کیجئے یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اور بات صرف نوجوان نسلوں کی نہیں ہے۔ ارے آج نابالغ بچوں کے بارے میں جو کچھ ہم لوگ سن رہے ہیں نا، حیران ہو جائیں گے، آپ دانتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ ہاں، اور 10 سال کی عمر کا لڑکا محبت کے خطوط لکھ رہا ہے، 10 سال کی عمر کا۔ ہاں، 9 سال کا لڑکا اپنی ہم عمر بچیوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے۔ یقین نہیں آتا تو یہ جو سرکاری اسکول ہے نا جس میں مسلم بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں، یہ منسپالٹی کی اسکول، 12:30 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے، اگر ان نابالغ بچوں کا بے حیائی کا ننگا ناچ آپ لوگوں کو دیکھنا ہو تو ان اسکولوں کے بعد 12:30 بجے کے بعد کھڑے ہو جاؤ۔ ہائے، لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ کر، ہاں، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی، لڑکیوں کو گلی نکڑ پہ لے کے کھڑے ہو جانا کون ہے؟ نابالغ بچے، 11 اور 10 سال کی عمر کے بچے، دیکھیے تو صحیح ننگا ناچ رہے بے حیائی کا۔ ہاں، یہ نوجوان ایسا لگتا ہے یہ نابالغ بچے نوجوانوں کی روش سے چل پڑے اور وقت سے پہلے بالغ ہوئے جا رہے ہیں۔ اور مجھے معاف کیجیے اس تعبیر پر، ہمارے یہ معاشرے میں پائی جانے والی اسکول اور کالجز ہے نا، یہ عشق و محبت کے اڈے ہیں، عشق و محبت کے اڈے بنے ہوئے۔ ہمارا لڑکا اس کالج اور اسکول کے اندر کوئی سبق پڑھے نہ پڑھے، عشق کا سبق ضرور پڑھ کے آتا ہے، کوئی سبجیکٹ پڑھے نہ پڑھے، محبت کا سبجیکٹ ضرور پڑھ کے آتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو کسی کالج میں پڑھتا ہو، یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، اور پورے تعلیمی مراحل میں اپنے دامن کو عشق و محبت کی آلودگیوں سے بچا کے نکلتا ہے۔ اس لڑکے نے کالج اور یونیورسٹی سے ڈگری لے لی لیکن تعلیمی مراحل میں کسی لڑکی کی زلف کا اسیر نہ ہوا، ہاں، کسی کی محبت میں شکار نہ ہوا، یہ اللہ کا ولی، اور اللہ کی ولی ہے وہ لڑکی جو کسی اسکول اور کالج میں پڑھتی ہے، حجاب اور پردے کے ساتھ پڑھتی ہے۔ پورے تعلیمی مراحل میں یہ لڑکی اپنے دامن کو عشق و محبت کے داغ اور دھبوں سے بچا کے نکل آتی ہے، اللہ کی ولی ہے۔ ارے مسجد میں ہر کوئی تقوی کا ثبوت دیتا ہے، ہاں، مسجد میں ہر کوئی متقی ہے، تقوی کا ثبوت وہاں پر دو جہاں برائے برائی کے مواقع ہو۔ اور اسکول اور کالجوں کا جو ماحول ہے وہ ہم لوگوں سے بہتر تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہاں، ان مراحل میں اسکولوں کے ماحول میں اگر کوئی لڑکا اپنی جوانی کی حفاظت کر کے نکل جائے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کوئی لڑکا اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کر کے نکل جائے، میں کہتا ہوں اللہ تقوی کے اس سے بڑے ثبوت نہیں ہو سکتا، تقوی کی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی۔ حضرات، آپ ماضی کے انسان کو دیکھیے، گزرے ہوئے دور کو دیکھیے، ایک انسان کی شرم و حیا کا معیار کیا تھا، ایک لڑکی کی شرم و حیا کا معیار کیا تھا۔ اللہ، باپ اپنی بچی کے لیے لڑکا ڈھونڈتا تھا، ولی اپنی بچیوں کے لیے لڑکے کا انتخاب کرنے کے بعد جب اپنی بچی کے پاس آ کے کہتا تھا بیٹا ان صفات کا حامل میں نے تمہارے لیے لڑکا تلاش کیا ہے، بڑا دیندار ہے، بتاؤ یہ رشتہ تم کو منظور ہے؟ اپنی بچی سے باپ پوچھتا تھا بتاؤ یہ رشتہ تم کو منظور ہے؟ شرم اتنی تھی کہ لڑکی ہاں نہیں کہہ پاتی تھی، شرم اتنی تھی، حیا اتنی تھی کہ لڑکی سر جھکا لیتی تھی، ہاں نہیں کہہ پاتی تھی۔ بعض صحابہ تو اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ اللہ کے رسول لڑکے کا انتخاب کرنے کے بعد جب ہم اپنی بچیوں کی رضامندی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہماری بچیاں ہاں نہیں کہتی ہیں، ہماری بچیاں خاموش ہو جاتی ہیں، ان کی خاموشی کو کیا سمجھے؟ امام کائنات نے فرمایا
इज़्नुहा सुमातुहा, इज़्नुहा सुमातुहा। अरे अल्लाह के बंदो, रिश्तों के मामले में अगर तुम्हारी बच्चियां खामोश रह जाए तो उनकी खामोशी को हाँ समझ के कदम आगे बढ़ा दो। वो शर्म की वजह से हाँ नहीं कह पा रही है, वो हया की वजह से हाँ नहीं कह पा रही है। एक शर्म हया का ये मैयार और एक शर्म हया का ये मैयार जो हम अपनी आंखों से अपने समाज में देख रहे हैं। आज हमारा तो माहौल क्या मालूम है, लड़कियां घर से बाहर निकल के अपनी जिंदगी का हम सफर खुद तलाश कर रही हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियां, मुसलमान बच्चियां अपनी जिंदगी का साथी खुद तलाश कर रही हैं, खुद तलाश कर रही हैं, खपते नजर इससे कि वो लड़का उसके लिए सही है कि नहीं। न लड़के के मकतब फिक्र को देखा, न उसके मनहज को देखा, न उसके अखलाक को देखा, न उसके दीन को देखा, बस दिल आ गया। हाँ, अपनी जिंदगी का साथी तलाश करने के बाद वालिदैन के साथ झगड़ा करती है, खानदान को ठुकराती है, खानदान के बड़ों से झगड़ा करती है, अल्लाह को नाराज करके बड़ी जिद और हद करने के साथ माँ बाप की आंखों में आंखें मिला के क्या कहती है मालूम है, करूंगी तो उसी से करूंगी वरना मर जाऊंगी, करूंगी तो उसी से करूंगी वरना मर जाऊंगी। हाय, शर्म हया के एतबार से इंसान कितना गिर चुका है। बेगैरती की हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई। जब बात जोड़ों के इश्क मोहब्बत के चर्चे जब मुआशरे में आम हो जाते हैं, हाँ, दोनों ने लव मैरिज कर लिया, शादी कर ली भाग के, हाँ, मुआशरे में इनके इश्क मोहब्बत के चर्चे इस कदर आम हुए कि इनके बच्चे भी हो गए। ये बच्चे जब जवान होते हैं, बड़े होते हैं, तो उन्हें मुआशरे वालों की जबानी सुनने को मिलता है कि तुम्हारे अब्बू और अम्मी का रिश्ता जो है वो इश्क मोहब्बत का रिश्ता था, वो एक लव मैरिज था। जब ये बच्चे मुआशरे वालों के जबानी अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सुनते हो, बताओ उनकी तरबियत पे क्या असर पड़ेगा बच्चे। हाँ, ये बच्चे माँ बाप के रविश में नहीं चलेंगे। बताओ आप मुझे, हज़रात, इश्क एक मर्ज है, इश्क एक बीमारी है, इश्क एक रोग है जो आए दिन इंसान को अंदर से खोखला करके रख देता है। और हमारे मुआशरे और मोहल्ले में ये लड़कियां जो खुदकुशी कर रही है ना, लड़के जो खुदकुशी कर रहे हैं, इस खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह इश्क मोहब्बत की नाकामी है। ये जो पंखे से लटक जाती है, ये इश्क मोहब्बत की नाकाम लड़के और लड़कियां हैं। लड़की ने इश्क किया, नाकाम होगी, जाके खुदकुशी कर ली। लड़के ने मोहब्बत की, नाकाम हो गया, जाके खुदकुशी कर लिया। या दोनों राजी थे, लड़के और लड़कियां, खानदान वाले राजी न हुए, माँ बाप राजी न हुए, दोनों ने मिलकर खुदकुशी कर ली। इसकी वजह से खानदानों का सुकून बर्बाद हो चुका है। इश्क मोहब्बत की वजह से वालिदैन की जिंदगी की खुशियां लुट चुकी हैं। हाय, अल्लामा हाली की याद आ गई मुझे। अल्लामा हाली ने कहा था, आए इश्क तूने अक्सर कौमों को खाते छोड़ा, आए इश्क तूने अक्सर कौमों को खाते छोड़ा, जिस घर से सर उठाया उसे डुबा के छोड़ा, जिस घर से सर उठाया उसे डुबा के छोड़ा। राजों के राज छीने, शाहों के ताज छीने, राजों के राज छीने, शाहों के ताज छीने, गर्दन कशों को अक्सर नीचा दिगा के छोड़ा। एक 10 तरस से तेरी हाली बचा हुआ था। अल्लामा हाली खुद कहते हैं, एक 10 तरस से तेरी हाली बचा हुआ था, उसके भी दिल पे आखिर चरखा लगा के छोड़ा। और एक तरफ हमारे मुआशरे में खुदकुशी की वारदात है और दूसरी तरफ जिना के कल्चर की वजह से ये नौजवान जो जिना की रविश में चल रहे हैं, इसको मोहब्बत के रंग में रंगे हुए, इसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नफ्सियाती अमराज की बहुतायत है हमारे मुआशरे में जिना की रविश की वजह से। हाँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इंसान आज जितना बीमार है ना, माजी में इतना बीमार नहीं था। ये जिना की वजह से, ये इश्क मोहब्बत के रंग में रंगे हुए ना, ये इतने बीमार है। बाहर से ये जितने सजाए लगते हैं ना, ये काजल सजी हुई आंखें, ये पाउडर लगाया हुआ चेहरा, ये लड़के और लड़कियां बाहर से जितना बन सवर के निकलते हैं ना जिना के लिए, ये अंदर से उसी कदर खोखले हैं। ये खुद बीमार, एक ही रूह बीमार, इनका जिस्म बीमार। इमाम कायनात के अल्फाज में किस कदर सच्चाई है कि लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कत, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कत हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशातिहि मुद्दाउन वलौ जालती लम तकुन मज़त असलाफिही। इमाम कायनात ने फरमाया, जिस नस्लों में जिना आम हो जाए, जिस कौम में बदकारी और जिना आम हो जाए, इल्ला फशातिहि मुद्दाउन, इमाम कायनात ने फरमाया, जिना इस कदर आम हो कि खुली सड़कों पे जिना हो, खुले रोड पे जिना हो,
جس قوم میں زنا اس قدر عام ہو جائے الا فشا فیہم الطاعون، ایسی قوموں پر اللہ طاعون کا مرض مسلط کرتا ہے، اور والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، اور اللہ ایسی نسلوں پر ایسی بیماریاں مسلط کرتا ہے جن بیماریوں کے بارے میں ان کے آبا و اجداد کو کبھی سنا تک نہیں ہوگا۔ ایڈز کی بیماری، ایڈز، یہ ماضی میں یہ بیماری نہیں تھی، گزرے ہوئے دور کو آپ دیکھیے، ہمارے آبا و اجداد نے بیماریوں کے بارے میں سنا تک نہیں۔ یہ بیماری زنا کی روش میں چلنے کی وجہ سے اللہ نے ہم پر مسلط کی ہے۔ ہاں، یہ ہمارے نوجوان نسلیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، یہ جو عشق و محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے نا، اس زنا کی وجہ سے اللہ نے ایسا مرض ہم پر مسلط کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو معلوم ہے اس زنا کی روش میں چلنے کی وجہ سے، عشق و محبت کی وجہ سے والدین کی یہ غصہ، والدین کے حق میں یہ نوجوان بچے اور بچیاں کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں معلوم ہے؟ ان کے آبا و اجداد میں، ان کے خاندان والوں نے ایک صدی کی محنت سے جو نام کمایا تھا، جو معاشرے میں عزت کمائی تھی، ان کے والدین نے، یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے، یہ ہمارے محلے، ہمارے معاشرے کی نوجوان نسل زنا کے روش میں چلنے کی وجہ سے، عشق و محبت کی وجہ سے خاندان کی عزت کو سڑکوں پہ نیلام کر رہے ہیں، والدین کی عزت کو سڑکوں پہ نیلام کر رہے ہیں، اور انہیں شرم تک نہیں، انہیں شعور تک نہیں، ان کے والدین اور خاندان والوں کا قیمتی سرمایہ جو عزت کی شکل میں ان کے والدین اور خاندان والوں نے کمایا تھا، آج یہ زنا کے روش پہ چلنے کی وجہ سے، اس بے روی کی وجہ سے سڑکوں پہ نیلام کر رہے ہیں۔ اور ان نوجوانوں کی وجہ سے آج پورا معاشرہ ان کے والدین کے اوپر تبصرے کر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں حادثہ ہو جاتا ہے نا، تو والدین جیتے جی والدین کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، پھر وہ معاشرے میں سر اٹھا کر گھوم بھی نہیں سکتا، پھر بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ بچے نے ناک کٹوا دی، بچے نے میری ناک کٹوا دی، کون سا منہ لے کے اب میں معاشرے میں گھوموں؟ یہ والدین کی دوستوں عزتوں کو سڑکوں پہ نیلام کرتے ہیں۔ اور عذاب ہمارے معاشرے میں زنا کی وجہ سے، عشق و محبت کی وجہ سے معلوم ہے جو منفی اثرات ہمارے معاشرے پہ، سب سے بڑا منفی اثر یہ ہوا ہے ازدواجی زندگی ناکام ہے۔ ازدواجی میاں بیوی کی زندگی ناکام ہے۔ کیوں ناکام ہے؟ شریعت نے کہا تھا کہ جب رشتہ تلاش کرو تو صورت کے ساتھ سیرت کو دیکھنا نہ بھولو، پاکیزہ اخلاق کو دیکھنا نہ بھولو، تم کا المرأۃ لاربع۔ امام کائنات نے فرمایا لڑکی کا اگر انتخاب کرتے ہو تو آپ نے فرمایا عموماً لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ امام کائنات نے فرمایا عمومی طور پر لڑکی کے خاندانی پس منظر کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دینداری کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں جو دیکھنا ہے دیکھ لو، تمہیں جو بھی دیکھنا ہے دیکھ لو، لیکن اخلاق دیکھنا نہ بھولو، بچی کی دینداری دیکھنا نہ بھولو، اس کی پاکیزہ سیرت کو دیکھنا نہ بھولو۔ اور آج معلوم ہے یہ عشق و محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے نوجوان ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ شریعت کی تعلیمات کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، شریعت کی تعلیمات کو ٹھکراتے ہیں، والدین کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے یہ لڑکی اسی جگہ جو تو شادی کرتی ہے جہاں پر اس کا دل آ گیا، یہ لڑکا اسی جگہ نکاح کرتا ہے جہاں پہ اس کا دل آ گیا۔ نہ والدین کی رضامندی شامل، نہ خاندان کے بڑوں کی رضامندی شامل، نہ اللہ کی رضامندی شامل۔ آپ مجھے بتاؤ ایسی ازدواجی زندگی میں کہاں سے برکت آئے گی؟ ایسے رشتوں میں کہاں سے برکت آئے گی؟ معلوم ایک بات یاد رکھنا میری، صورتوں کی بنیاد پر رشتے نہیں نپتے ہیں، رشتے سیرتوں کی بنیاد پر نپتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے جب صورتیں لڑکیوں کی دیکھو تو صورتوں سیرتوں کو دیکھنا نہ بھولو، صورتوں کے ساتھ سیرتوں کو دیکھنا نہ بھولو۔ صورتوں کا نشہ مہینوں میں اتر جاتا ہے، صورتوں کا نشہ مہینوں میں اتر جاتا ہے، بلکہ باقی ازدواجی زندگی میں جو مضبوطی آتی ہے نا، جو استحکام آتا ہے، وہ پاکیزہ اخلاق سے آتا ہے، وہ دینداری سے آتا ہے، وہ ایمان سے آتا ہے، وہ نرم مزاجی سے آتا ہے، وہ محبت و ملنساری کی وجہ سے آتا ہے۔ اور آج یہ نوجوان جو زنا کی ریس پہ چلنے والے ہیں کچھ نہیں دیکھتے، صرف صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور صورتوں کی بنا ہونے والے رشتے کبھی نہ کبھی آگے چل کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے
सुना है 6 महीने में रिश्ता टूट गया, 1 साल में रिश्ता टूट गया, 2 साल में रिश्ता टूट गया, और अगर कोई निभा कर चला भी गया, तो रोजीना झगड़े, रोजीना की पंचायत, रोजीना के टेंशन, इश्क और मोहब्बत की वजह से मियां बीवी की जिंदगी नाकाम है। और इश्क और मोहब्बत की वजह से, जिना के रविश पे चलने की वजह से हमारी मौजूदा नस्ल क्या क्या खोती है मालूम है? हमारा खसारा कितना बड़ा है, नौजवान नस्लों का नुकसान कितना बड़ा है। तालीम गई, सेहत गई, तिजारत गई, हाँ, वालिदैन के दिन का जो रातों की नींद गई, दिन का सुकून गया, और कभी कभार ऐसा होता है कि लड़की का दीन भी गया, लड़के का ईमान भी गया। क्या हम ऐसे वाकयात, आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, रोज अखबार अगर पढ़ते हैं, वल्लाह मैं तो हर 2-3 दिन पे पढ़ता हूं, हाँ, कि मुसलमान लड़की है गैर मुस्लिम के साथ रह रही थी और आखिर जलील और रुसवा करके मार के भगा दिया, हाँ, मार के भगा दिया। हर 2 दिन के बाद अखबारों में दोस्तों आप इनकलाब अगर पढ़ते हो, हर 2-3 दिन के किसी न किसी सफे पे आपको ये खबर मिलेगी। कौन है? यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़कियां मुसलमान, कॉलेजों में पढ़ने वाली, और जाल बिछा हुआ है कि फंसाओ इन लोगों को, जलील और रुसवा करके भगाओ इन लोगों को। और आपको मालूम है कभी कभार ये लड़के लड़की को पाने के लिए मुर्तद हो जाते हैं, मुसलमान लड़के लड़की को पाने के लिए मुर्तद हो जाते हैं, लड़की लड़के को पाने के लिए मुर्तद हो जाती है। अल्लाह अकबर। और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है खबरदार किसी मुश्रिक औरत से निकाह न करो, किसी जब तक कि वो ईमान न ले आए। अरे इस मुशरिक औरत से तो मोमिना लौंडी बेहतर है तुम्हारी, घरचे मुशरिक औरत तुमको कितनी भली और कितनी अच्छी क्यों न लगे। और अल्लाह ने सरपरस्तों से कहा खबरदार अपनी बेटियों का निकाह मुशरिक मर्द से मत करो, खबरदार अपनी बहनों का निकाह मुशरिक मर्दों से मत करो। अरे मुशरिक मर्द से तो एक मोमिन गुलाम बेहतर है, घरचे मुशरिक औरत, मुशरिक मर्द तुमको कितना अच्छा और कितना पसंद क्यों ना आता हो। शरीयत ने ईमान की शर्त रखी है कि ईमान के बल पर रिश्ते होने चाहिए। और जब बात आ गई है, एक बात और बता देता हूं, हम बिदअत और शिर्क से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लड़का बरेलवी है, माल और दौलत को देखकर मुसलमान अहले हदीस अपनी लड़की दे देता, और उनके घरानों की लड़कियां बिदअत और शिर्क से हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, माल को देकर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। उनकी लड़कियां हमारे घरों में है, हम अहले हदीसों की लड़कियां उनके घरों में है। कौन सा ऐसा आलिम है दोस्तों जो इसको सही कहता? और कई आलिमों के बारे में भी हमने सुना है कि बिदअत से कंप्रोमाइज करके उनकी बीवियां उसी बिदअत के रास्ते पर चल रही हैं, बरेलवी हैं, हाँ, और रखे हुए उलमा उनको अहले हदीस उलमा। वल्लाह कहता हूं, क्या मालूम है अहले हदीसों से पूछो ऐसा क्यों, सबर क्यों ना किया? तो क्या कहते हैं मालूम है? उधर क्या देते? अरे हमारा बच्चा बड़े अकीदे में बड़ा मजबूत है, बड़ा शूर रखता है, हाँ, दीन की बड़ी समझ है, उसको बदल देगा। आ जाए भी हमारे घर पे तो उसको बदल देगा। मैं आपको बताऊं, इमरान बिन हित्तान सन 80 हिजरी में इनकी वफात है। इमरान बिन हित्तान कौन है मालूम है? एक ताबई है, अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का भी शागिर्द है इमरान बिन हित्तान। यानी इन हजरात ने इनको पढ़ाया है। और क्या क्या मालूम है? खारजी औरत से निकाह किया। किससे? खारजी औरत से निकाह किया। जब सहाबा ने, दूसरे लोगों ने एतराज किया तो इमरान बिन हित्तान ने क्या कहा मालूम है? आने दो, मेरे घर पे बदल दूंगा लड़की को बदल दूंगा। और क्या हुआ मालूम है? खुद बदल गए, खुद मुर्तद हो गए। इमरान बिन हित्तान खुद मुर्तद हो गए। सन 80 हिजरी में इनकी वफात है। हाँ, हमारे बच्चे इमरान बिन हित्तान की तरह नहीं हो सकते जो किसी सहाबी की, दोस्तों सहाबी के पास पड़े होंगे। अबू मूसा अशरी और अम्मा आयशा के शागिर्द हैं, वो खारजी औरत से निकाह करके मुर्तद हो गए। याद रखना, बिदअत और शिर्क से कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हम माल देकर अपनी लड़कियों को घरानों में दे तो देते हैं, लेकिन लड़कियों की आखिरत को बर्बाद कर देते हैं, उनकी आखिरत, उनके सुकून को बर्बाद कर देते हैं। आज दोस्तों इश्क और मोहब्बत के रास्ते से जो लड़के अपना ईमान गंवा रहे हैं, जो लड़कियां अपना दीन गंवा रही हैं, रातों की नींद हराम हो जाएगी कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे, इनके वालिदैन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। हदायत इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो इश्क और मोहब्बत में हमारा मुआशरा जो रंगा हुआ है, ये जिना की रविश से हमारे नौजवान नस्लें चल रही है, जिम्मेदार कौन है इसका? मैं इसका अव्वली जिम्मेदार आज के फिल्मी कल्चर को मानता हूं। यह हमारे मुआशरे में जो फिल्मी कल्चर है, जो बेहयाई पर मबनी कल्चर है, बहरगी पर मबनी कल्चर है। अल्लाह अकबर। आज हमारे हिंदुस्तान की बनने वाली फिल्मों या हिंदुस्तान से बाहर बनने वाली फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? 3 घंटे तक थिएटर में देखकर हमारा नौजवान क्या देखता है मालूम है? एक लड़का है, एक लड़की है।
जिसको आप हीरो हीरोइन कहते हैं। अब ये हीरो इस हीरोइन को कैसे पाता है, ये लड़का इस लड़की को कैसे पाता है, और पाने के लिए क्या कोशिशें करता है, क्या जतन करता है, लड़की को कैसे वालिदैन का जिना सिखाया जाता है। नौजवानों, फिल्मों में जिना, अल्लाह की कसम, जिना सिखाया जाता है। जो ड्रामे और सीरियल हम अपने घरों पे देखते ना अपनी बच्चियों के साथ, ये ड्रामे और सीरियल में जिना सिखाया जा रहा है, जिना हमारी लड़कियों को। हमारे बच्चे जो फिल्में देखते हैं ना, जिना के अलावा कुछ नहीं है। आपको मालूम है फिल्म कब खत्म होती है, चाहे हिंदुस्तान या हिंदुस्तान की बात, फिल्मों का एंड कब होता है, लड़के ने लड़की को पा लिया, बस फिल्म का एंड हो गया। और फिर उसने उसको पाने के लिए क्या जतन की, क्या कोशिश की, रब्त कायम हुआ, रिश्ता कायम हुआ, हीरो ने हीरोइन को पा लिया, फिल्म का एंड, फिल्म का खुलासा। आप मुझे बताइए, हमारी नौजवान नस्लें ये सीरियल देखते हो, ऐसे ड्रामे देखते हो, ऐसी फिल्में देखती हो, क्या हमारी नौजवान नस्ल इन पर नहीं चलेगी? हाँ, उनके अखलाक नहीं बिगड़ेंगे? ये फिल्मी कल्चर बड़ी उसका जिम्मेदार है। अरे ऐसे मैं कहता हूं टीवी को बाहर फेंकना चाहिए। जो हमारे घर की औरतें, हमारी बहू बेटियां ऐसे सीरियल देखती हो, ऐसे टीवी पर भी जो पाबंदी लगनी चाहिए घर में। हाँ, मैं आज का फिल्मी कल्चर, अरे हमारे बच्चों को स्कूलों में जो निसाब पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, सेक्स की तालीम दी जाती है बच्चों को, छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को सेक्स की तालीम दी जाती है, और इसको इंसान का बुनियादी हक कहा जा रहा है। आपके ऐसा क्यों? ये छोटे बच्चे इनको समझ नहीं, कहते हैं कि इंसान का बुनियादी हक है। हाँ, और इस निसाब को पढ़ने के बाद मुझे माफ कीजिए, आज नाबालिग बच्चे मियां बीवी के ताल्लुकात के बारे में इतना जानने लगे, बसा औकात वो बातें दोस्तों शादीशुदा जोड़ों को भी मालूम नहीं होती। ये नौजवान, ये नाबालिग बच्चे, आज का दोस्तों टीवी उसकी जिम्मेदार है, हमारा निसाब तालीम उसका जिम्मेदार है, हमारी तहजीब उसकी जिम्मेदार है, हमारा कल्चर उसका। मुझे माफ कीजिए, इस काबिल तो हम जिना के कल्चर में जी रहे हैं लोगों, हम जिना के कल्चर में जी रहे हैं। और मुझे हुकूमत में भी अफसोस होता है, एक तरफ रेप और जिना के वाकयात को जुर्म भी कहती है, और दूसरी तरफ जिना के कल्चर को फरोग दे रही है हमारी हुकूमत। हाँ, जिना तक पहुंचाने वाली जो असबाब है, जिना तक पहुंचाने वाली जो इक़दामात है, हुकूमत की तारीफ हासिल है। जो आज बाजारों में दोस्तों फैशन के नाम पर जो कपड़े मिल रहे हैं, जो हमारी लड़कियां पहन रही है, हमारे लड़के पहन रहे हैं, ये जिना तक पहुंचाने वाले असबाब है। ये उनका लिबास, ये उनकी निसाबी किताबें, ये इनके स्कूल और कॉलेज, ये जिना तक पहुंचाने वाले असबाब हैं। जिना, आपको मालूम है हमारे हिंदुस्तान को जो बड़े बड़े चैलेंजेस लायक हैं अभी, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये कि हिंदुस्तान में औरत महफूज नहीं है। हिंदुस्तान में औरत महफूज नहीं है। आज जिना आम है, गली गली आम है, शहर शहर आम है। आज हिंदुस्तान में औरत की इज्जत महफूज न रही, औरत की नामोज महफूज न रही, और आज इस कल्चर की वजह से, जिना के कल्चर में जीने के बाद आज का नौजवान भेड़िया बन चुका है, दरिंदा बन चुका है। अल्लाह अकबर। आपने कश्मीर की आसिफा की लाश को नहीं देखा? हाँ, आपने 2015 में दिल्ली में निर्भया के साथ जो हुआ आपने नहीं देखा? हाँ, कि जबान में ताकत है कि आसिफा निर्भया के रुदान को बयान करे, हाय किन आंखों में ताकत है कि आसिफा की लाश को देखे इंसान इस कदर भी गिरता है क्या? कुरान के अल्फाज में कितनी सच्चाई है। अल्लाह ने बोला, इंसान जब गिरता है ना, इंसान जब नीच होता है तो उन बस्तियों में जाके गिरता है, उसकी बस्ती पे जानवर को भी हया आ जाए, उसकी बस्ती पे जानवर को भी शर्म आ जाए। हाँ, आसिफा के साथ निर्भया के रेप के बाद लाश के साथ जो खिलवाड़ हुआ, लाश को जो दरिंदों ने नोचा है, किन ताकों में ताकत है कि उनकी लाशों को देखे। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात यह है कि जब ऐसे दरिंदों को पकड़ा जाता है ना, जो बच्चों की लाशों को नोचते हैं, जब ऐसे भेड़ियों दरिंदों को पुलिस पकड़ती है तो उनको छुड़ाने के लिए लोग एहतजाज करते हैं। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि एहतजाज करने वालों का ताल्लुक रूलिंग पार्टी से है, उस पार्टी से जिसको ऊपर से हिंदुस्तान में दोस्तों इक़्तिदार हासिल है। अफसोस होता है मुझे, अफसोस। नौजवान, मैं आप लोगों से कहूंगा, वालिदैन, आज इंसानों की शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं, आज इंसानों की शक्ल में रोड पे दोस्तों दरिंदे घूम रहे हैं। अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, अपने बच्चियों पे एहतसाबी नजर रखना न भूलो। अरे आपका लाड अपनी जगह पे, आपका प्यार अपनी जगह पे, लेकिन बच्चों पे नजर रखो। आपका बच्चा कॉलेज जा रहा है, आपकी बच्ची स्कूल जा रही है, पीछा करो जाकर उसकी सहेली कौन है, किनसे मिलती है, हमारे बच्चे के दोस्त हैं, वो दोस्त कैसे हैं, उनका मनहज क्या है, उनका अकीदा क्या है, उनका अखलाक क्या है, हमारे बच्चे ने जिससे दोस्ती की है, दोस्ती की बुनियाद क्या, क्या तालीम की बुनियाद पे दोस्ती की है, क्या दीनदारी की बुनियाद पे दोस्ती है। नाउज़ुबिल्लाह, कोई गलत मकसद तो नहीं। बच्चों पे नजर रखो। आप बच्चियों को फोन दे ही मत,
बच्चों को फोन की क्या जरूरत? बच्चों को तो फोन देना ही नहीं चाहिए। अगर बच्चों को देते हो, देखो आपका बच्चा फोन का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। दोस्तों मैं कहता हूं गैर जिम्मेदार है वो बाप, गैर जिम्मेदार है वो भाई जो अपने बच्चे और बच्चियों को महाना रिचार्ज तो करा के देते हैं फोन में, लेकिन नहीं देखते कि हमारी बच्ची उस रिचार्ज का इस्तेमाल कैसे कर रही है, हमारा बच्चा उस रिचार्ज का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। कमरा बंद है, हमारा रूम बंद है, हम क्या सोच रहे हैं हमारी बच्ची आराम कर रही है, हमारा बच्चा आराम कर रहा है, हमें नहीं मालूम कि हमारे लड़के तक लड़की पहुंची हुई है, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि हमारे लड़के तक लड़की कैसे पहुंची। वो दरवाजे से नहीं आई है, वो खिड़की से नहीं आई है। आप दरवाजा खोल के देखिए वो लड़का किसी से चैटिंग कर रहा है, दरवाजा खोल के देखिए आपका लड़का किसी से बात कर रहा है। बच्चों पे एहतियाती नजर रखो। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, बच्चों और बच्चियों की शादी में ताकीर मत करो। ये जो जिना के वाकयात हैं, जिना की रविश पे नौजवान चल पड़ते हैं ना, ये इसका सबसे बड़ा सबब शादियों में ताकीर है, शादियों में ताकीर। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है शरीयत क्या कहती है? लड़का नौजवान हो गया, लड़की जवानी की उम्र को पहुंच गई, वही निकाह की उम्र है, वही शादी, फौरन शादी कर दो। लेकिन आज क्या मालूम है, 40 साल की उम्र में शादियां हो रही है, 35 साल की उम्र में लड़की की शादी हो रही है, आप 30 साल की उम्र में लड़कियों की हम शादी करते हैं। कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबात फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज। आपने फरमाया नौजवानों की जमात, तुम में जिसके अंदर शादी की ताकत है, ताकत का मतलब क्या है? बीवी को मेहर दे सकता है, खिला पिला सकता है। आपने फरमाया निकाह कर लो फौरन, निकाह कर लोगे तो अपने अखलाक की हिफाजत कर ले जाओगे, निकाह कर लोगे अपनी जवानी की हिफाजत कर ले जाओगे। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर में कहा वांकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। अल्लाह ने फरमाया सरफरोशों से कहा तुम्हारे माशरे में जो गैर शादीशुदा मर्द औरत है, अल्लाह ने फरमाया उनका निकाह करा दो, निकाह करा दो। अल्लाह ने फरमाया मुस्लिम मुआशरा ऐसा होना चाहिए, कोई मर्द बगैर निकाह के न हो, कोई औरत बगैर निकाह के हो। ये अखलाकी बीमारियां कब फैलती हैं? नौजवान जिना के रईस में कर सकते हैं। ये इश्क मोहब्बत का ये फितना कब आता है? लड़की निकाह की उम्र को पहुंची हुई है, माँ बाप ने निकाह नहीं किया, लड़का निकाह की उम्र को पहुंच गया, हमने निकाह नहीं किया। शरीयत ने कहा कि कोई बगैर निकाह के न हो। अब वो चाहे लड़की मुतल्लका हो या खुला ली हुई हो या ऐसी बेवा हो, बगैर निकाह के लड़की को रहना ही नहीं है। लड़का है, मर्द है, बीवी इंतकाल कर गई, फौरन निकाह कर ले। इंशाअल्लाह अगर निकाह हर आप जो जवानी की उम्र को पहुंच जाता आप निकाह कर देंगे, इंशाअल्लाह ये फितना खत्म हो जाएगा। हाँ, ये ज़िना के दरवाजे यहीं से खुलते हैं। आपको मालूम है शेख बिन बाज के बारे में मैं हमेशा सुनता था लोगों से कि शेख बिन बाज 90 साल की उम्र में दोस्तों कैंसर हो गया था शेख बिन बाज को। हमेशा जब भी शेख बिन बाज से कोई मुलाकात करने जाता तो शेख बिन बाज हालचाल पूछते थे। हालचाल पूछने के बाद शेख बिन बाज कहते थे कि कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के और लड़कियां। उसके बाद पूछते थे क्या उम्र है। अगर वो कहता ना 17 साल 18 साल 19 साल उम्र है तो शेख बिन बाज नसीहत करते थे कि अपनी बच्चियों की शादी कर दो, शादी की उम्र हो गई है, अपने बच्चों की शादी कर दो। ये वो लोग थे हदीसों पर और कुरान पे इतनी गहरी नजर थी इन लोगों की। इन लोग को मालूम है कि लड़का मोहल्ले में जवान हो गया तो कितना बड़ा फितना बन जाता है। लड़की अगर जवानी की उम्र को पहुंच जाए तो उसकी शादी करना कितना जरूरी है। शेख बिन बात करते कहते हैं कि निकाह कर दो, निकाह कर दो। ये तो हमने अपने ऊपर दोस्तों से एक जुल्म दोस्तों रवा रखा है कि जब तक हमारे घर में बच्ची है भाई निकाह नहीं कर सकता जब तक बहन देखी हुई है। ये किसने कहा? अरे अल्लाह ने दुनिया में जिस तरतीब के साथ पैदा किया उसी तरतीब से निकाह हो जाना चाहिए। बहन अगर शादी की उम्र को पहले पहुंचती तो बहन का कर दो, भाई पहुंचता है तो बहन का और भाई का निकाह कर दो। ये तो दोस्तों एक मुआशरे का जुल्म है जो हमने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है। जो निकाह की उम्र को पहले पहुंच जाए उसका आप निकाह कर दो। और बच्चे और बच्चियों की जज्बात को समझो। सूरह कसस आप लोग पढ़ते हैं? सूरह कसस मैं कुरान मजीद की सूरतों में सूरह कसस के बारे में आप लोगों से कहता हूं, उसको तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़िए। अल्लाह की कसम कुरान मजीद की सूरह कसस ऐसी है उसमें बहुत सारे असबाब हैं। एक सूरह नूर और दूसरी सूरह कसस। इसको मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप पढ़िए इंशाल्लाह तफसीर। सूरह कसस की आयत नंबर 26 को आप पढ़िए। उसमें मालूम है मूसा अलैहिस्सलाम ने जिन 2 बच्चियों के जानवरों को पानी पिलाया था कुएं पर, जानवरों को पानी पिलाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जानवरों को पानी पिलाने के बाद यूसुफ मूसा अलैहिस्सलाम साए में बैठकर दुआ करते हैं, क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैर, अल्लाह आसमान से जो भी तो खैर नाज़िल करे उसका मोहताज। अच्छा, पानी पिलाने के बाद बच्चियां चली गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम वहीं साए के नीचे बैठे रहे।
اب جب باپ نے دیکھا کہ جانور ہمارے پہلے آ گئے ہیں، اتنا جلدی کبھی نہیں آئے، تو باپ نے بچیوں سے پوچھا، تو ایک بچی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، بڑا ایماندار ہے، ایک نوجوان ہے، اسی نے ہماری مدد کی، بچیوں کو، ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ تو اس بڑے انسان نے کیا کہا، خود بوڑھا ہے، بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، اس لیے اپنی بچی سے کہا اگر تم کہہ رہی ہو کہ وہ اجنبی ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اسے کھانا کھلانا چاہیے، سر چھپانے کے لیے گھر دینا چاہیے، جاؤ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لائے تو ایک بچی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ بچوں کے جذبات کو سمجھو، اپنے بوڑھے باپ سے کہتی ہے ابو اس کو اجرت پہ رکھ لو، اس کو اجرت پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایمانداری دیکھیے، ابو اس کو اجرت پہ یعنی مزدوری پہ رکھ لو اپنے پاس، اور ابو مزدور وہ اچھا جو طاقتور ہو، مزدور وہ اچھا جو امانتدار ہو۔ ابو کنویں سے لے کر ابھی تک اس نوجوان نے آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا ہے۔ مبصرین اس کی تفسیر کرتے آیت کی، ابو کنویں سے لے کر ابھی تک اس نے مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اتنا ایماندار ہے، اتنا امانتدار ہے۔ ہائے، بچی کے جذبات کو باپ نے پرکھ لیا، مطلب نکاح کرا دو، فوراً باپ نے نکاح کر دیا بچی کا موسیٰ علیہ السلام سے۔ بچوں کے جذبات کو سمجھو، کالجوں کا ماحول، اگر آپ کے بچے جوانی کی عمر کو پہنچ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر خواہشانی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر جائز راستہ آپ کے بچوں کے پاس نہیں ہے نا، نکاح نہیں ہے نا، تو ایک دو قدم بھی آپ کے بچوں کو دوستوں زنا کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی جذبات کو سمجھو اور فوراً نکاح کرو۔ اور دوسرے نوجوانوں اپنے اخلاق کی حفاظت کرنے کے لیے نظروں کو جھکا دو۔ یاد رکھنا، زنا کا سفر شروع ہوتا ہے غلط سے، ناجائز تعلقات کا سفر شروع ہوتا ہے ایک غلط نظر سے۔ جس نے نظر کی حفاظت کر لی اس نے جوانی کی حفاظت کر لی۔ اللہ رب العالمین سے اپنے اخلاق کے لیے، اپنے دوستوں جوانی کی حفاظت کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ عورتیں زنا کی طرف بلا رہی تھی تو کہا رب السجن احب الی مما یدعون، اے اللہ میری جوانی کی حفاظت کر، اس سے تو میرے لیے قید خانے کی زندگی بہتر ہے۔ انشاءاللہ نوجوانوں، آپ لوگوں کا عزم و ارادہ ہوگا اور اخلاص کے ساتھ دعائیں ہوں گی، اللہ آپ کی جوانی کی حفاظت کرے گا، بلکہ ہر فتنے سے آپ لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کہی اور سنی ہوئی باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔